Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. Right. Am I audible to you guys? Yeah? Yes, sir. Okay. All right. All right. So, uh, any any update from you guys' side? Anything that has been done or anything to be reviewed? So we discussed about Google My Business last time, right? On Thursday. Sir, we discussed about keywords. Keyword selection process. Okay. All right. So, okay. So in continuation with that, we'll be a little bit doing the exercise of meta tags so that we will incorporate that. We will try to incorporate that on Wix site. Okay. So I'll just open one Excel sheet and then Google, and followed by that will be process. So you guys have this Excel sheet visible to you, right? All of you. Yes, sir. Right. So what we will do, I'm like, as a process of keyword selection, right? Then we have to incorporate these keywords on a website for on-page optimization. For that basic thing, which we will be practicing today, related to title and description tags to be created, right? In the format of creating it. Okay. So if example, I'll just give you a few of the examples and then it's up to you guys, because every one of you have a different business that you have created, different Wix pages that you have created. Right. So first of all, we will create a column with keywords, whatever the keywords that has been chosen, then followed by safe example. Over here, we'll do a little bit of exercise. Safe example, we have, I'm taking off example of our business. Okay, that is related to digital marketing services. Okay. Say for example, we have taken keywords after doing Google analysis, after doing this search tool analysis. Digital marketing agency is one keyword. Okay. For example, digital marketing agency is one keyword. Another keyword could be digital marketing services. Third could be website designing. Services or agency, whatever it is. Then search engine, SEO. I'm just giving example, that safe example we have selected or finalized based on Google parameter, or based on Google search results and all. We have decided that these are few of the keywords that we are taking. Okay. Social media. So we can start working towards these keywords. So for example, I have chosen 5 keywords for our website, and my website carries multiple pages. In that scenario, so for every page there is a possibility we will be talking about different services or different products.
right? So for that, we may have to use some variations, right? So these are primary keywords that we have chosen, primary keywords. Now, on top of it, the keywords that we'll be promoting, we can go for promotion of these keywords, but more or less, the moment we talk about the services, there is a possibility that people may search for localized or regionalized keywords rather than going with the generic keyword. So I understand most of the scenario that even if we are selling it online, but some kind of regional touch that we are going to put, or you may not put that as well. But more or less, if you search for various kind of services on Google, you will find that lot of services are regionalized and hyper local based keywords. Say for example, the moment we are talking about cake kind of business, the moment we are talking about event business, right, then similarly we have web design development business, which could be anywhere in the world. But thing is, there is a possibility people may be looking for agency in Hyderabad or agency in India. Okay, so keeping that in mind, what we will be doing, we'll be doing some variations. We'll be doing some variations with this, and then we'll be creating title, description, and other things. Right. So for every keyword, there is a possibility you have different website links. So what will happen? So first column is primary keyword, then it is URL. URL is website link. Third is title tag. Fourth is description tag. So we'll be creating these tags right now, and then this exercise will go to you guys that you create these things for your website, and then we'll be taking it forward. Okay. Other day I have created one website on Wix by this name. So what I'll do, I'll be using this as a sample example for you guys, and then probably we'll be practicing rest of the things. Say this is the URL, for example. This is the URL for, okay, this is the URL. Now for this, as we are trying to target this URL for this particular keyword, right? Digital marketing agency. So mostly we have to use some prefix or suffix along with this keyword. And then there is a character limitation. We can go up to 56 to 60 characters in title. Similarly, in description, we can go up to 150 characters or 160 characters, right, as a description of that particular thing. So if example, this is the URL, and then I want to create title tag for this. So what is title tag? When you search in Google, whatever comes in the blue line or the clickable link that with some kind of content, that is called title, and then something which is coming after that two-liner, that is the description tag. Okay. So for this, I might be writing it best digital marketing agency in Hyderabad. Okay. So we need to see whether this is 60 character or 56 to 60 character or not. If it is exceeding, it's okay, but it should not, like, instead of 60 character, it is going to 100 characters. One or two words here and there, that is okay, but should not go to very long extension of it. Then followed by that, description. Description is something which helps people to read through what this page is all about, and then it will be indexed. Title and description are being indexed by Google, followed by content on the website. So we may write here, it will be little more detailing. Yeah, more detailing. Say
This page is about digital marketing agency. Right. So I'm just narrating it. So whatever is the title, I'm just narrating it into a sentence. We can also use our phone number in description, or we can use some more services related to digital marketing. As I understand that all of you guys have created multi-page website, so I'm not suggesting to use multiple keywords on the same website while describing that particular URL. So I'm just putting it for more details. Call at right. So this is a kind of a structure that I have just built in. Similarly, there is a possibility, because I have not created multiple page website. So there is a possibility also have a link which is about. Okay, so I am just putting, just for the sake of example, I'm just putting about over here. So this page is about, right, about the company. So we can so first homepage we have created for digital marketing agency. Second keyword that we are targeting over here is digital marketing services. So we can put it best, or even we can put top. So as I said, like some of the preferable suffix and prefix that can be added with the primary keyword. So I'm in first URL I'm adding best, in second URL I'm adding top, and likewise we'll be defining something over here as well. For example, I have written this as a second
second URL. Third thing is website designing. I understand that my another website, another link is, I'm just creating it artificially and you guys have it, so you guys can do it. Or right, so what will be the title over here? It will go best or affordable, whatever you want to. Affordable website designing services. इन इंडिया भी आप डाल सकते हो, इन हैदराबाद भी डाल सकते हो, जैसा भी आपको सहूलत हो. सिमिलरली we may write similar kind of thing over here. I'm just trying to edit it. Web designing services. Hyderabad offers best web design and development services for all business needs. I'm like, I have not made much variations about it. So likewise, we'll be creating all these things for all the pages, whatever you have made for, and then we'll be creating this, right? Now, ये जो title or description है, so what we have to do once we are done with this, we have to actually upload that on our website so that Google fetches it. Okay. So इसी तरह से ये तो एक एक सर्विस से रिलेटेड हुआ, right? We can actually add few more related websites. Say for example here we are talking about web designing services. In this we can also add, description के अंदर है हम डायनेमिक वेबसाइट या CMS बेस्ड वेबसाइट, उस तरह के एग्जांपल्स या उस तरह के कीवर्ड्स को भी हम यूज कर सकते हैं, राइट? तो वेब डिजाइनिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, जो रिलेटेड उससे वर्ड्स आ रहे हैं, उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं. And so likewise what will happen, you have to create all, say you have 5 pages website, so you have to create this for all 5 pages. ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने एक एक करके एग्जांपल ही दे रहा हूं, so that it helps you guys to understand that, and at the same time create a comprehensive this Excel sheet.
और भी आपके जो समझ में आ रहा है, या फिर आप दूसरे कॉम्पिटिटर्स के जो देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने डिस्क्रिप्शन को लिखा है, राइट, सो यू कैन यूज दैट। जैसे मैंने सेकंड सर्विसेज में लिखा है, packages starts with rupees 10,000 worth, right? So we can have that kind of thing also written over here, right? तो हमारा जितने से भी शुरू हो रहा है वो भी हम कर सकते हैं, या फिर ओके, सो फॉर एग्जांपल इस तरह से हम इन चीजों को क्रिएट कर लिए। अब इन चीजों को क्रिएट करने के बाद इसको हमको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, इसको हमको अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, मैंने आप लोगों के सामने 3 या 4 का मैंने बनाया है, उसी तरह से आप लोग भी अपने सारे पेजेस के लिए कस्टम डिजाइन करके इस तरह से आप लोगों को अपने कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन को बनाना है। अब चूंकि हम लोगों ने विक्स पे एक विक्स पे वेबसाइट बनाया है, तो विक्स पे जो वेबसाइट बनाया है उसके लिए इसी चीज को हम कैसे उस वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिर्फ एग्जांपल मैंने विक्स पे जब आप लोग विक्स के एडमिन में जाएंगे, जब आप अपने विक्स के एडिट वेबसाइट के या एडमिन में जब जाएंगे, तो वहां पे आपको एक लेफ्ट साइड में एक कंपोनेंट मिलेगा विच इज टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग एंड एसईओ। so what you have to do, you have to open that component. Hello, is my screen visible? Yes, sir. Okay, तो जब आप विक्स में जाएंगे तो विक्स में आपको लेफ्ट साइड पे एडमिन में ही लेफ्ट साइड में आपको मार्केटिंग एंड एसईओ करके एक कंपोनेंट आएगा। वहां पे आप एसईओ टूल्स पे जाके आप क्लिक करेंगे। एसईओ टूल्स पे जब जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एक ऑप्शन आता है विच इज टॉकिंग अबाउट एसईओ पैटर्न, right? So you have to click on SEO pattern and then you will get an option to put all these things. Okay, तो आप ये देख रहे हैं साइट पेज है and set a pattern for the main page of your website. So I just clicked on it and then you will find there are few options about SEO basics and social share. So we are going to click on SEO basics and social share and then you will find these things. Okay, so जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से एक प्रैक्टिस के तौर पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है, बट मैं इसको आपके सामने एडिट भी करता हूँ। अब ये स्पेशल कैरेक्टर जो है, गूगल स्पेशल कैरेक्टर रीड तो नहीं करता, लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ इस तरह की चीजें आप लगाते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक मैंने टिक मार्क लगाया है और यहाँ पे मैंने हैश यूज किया है। तो हैश नॉर्मली एडवाइज नहीं रहता है कि आप हैश यूज करें, ठीक है। तो जैसे ये टिक मार्क है, ये इसलिए है कि अगर सबके सब वहां पे लिस्टेड हैं और एक आपका थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी public will click on it or it will catch some attention. So keeping that in mind, I have just added this particular stuff over here, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे यूज कर सकता हूँ। ओके, सो यू कैन सी देयर इज समथिंग दैट इज कमिंग नाउ। अब जो मैंने एक्सेल शीट बनाया था उस एक्सेल शीट के हिसाब से मैं यहाँ पे चेंजेस करना शुरू कर दूंगा। जो भी आप लोगों ने एक्सेल शीट बनाया हुआ होगा, जो कि मैं मान रहा हूँ कि जैसे मैंने बनाया है उसी तरह से आप लोग भी बनाए होंगे या बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, विक्स साइट पे आके ये जो टाइटल है इस टाइटल को हम चेंज करेंगे, ठीक है। या आप लोगों ने अभी तक कोई टाइटल नहीं डाला होगा इसलिए आपके पास ये ब्लैंक आएगा, ठीक है। यहाँ पे किस तरह से आता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको मैं पूरी तरह से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जब आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे पेज नेम और साइट नेम करके आएगा। ओके, तो आप इसको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको पूरी को डिलीट कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप जो भी डालिएगा, तो यहाँ पे जो भी आप डालेंगे वो आपको राइट साइड में
प्रीव्यू इन गूगल करके आ जा रहा है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि टिक मार्क, आपको टिक मार्क यूज करना है यूज करिए, नहीं यूज करना है मत यूज कीजिए। बट दैट इज नॉट ए एसईओ कंपोनेंट। तो एसईओ से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस एक ये है कि हाँ थोड़ा सा हो जाता है कि आपको थोड़ा सा अट्रैक्शन मिल जाएगा और लोग वहां पे क्लिक कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं। ओके, उसी तरह से यहाँ पे टाइटल लिया, ओके, एंड देन फॉलोड बाय, मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया हूँ। राइट, तो जैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाला है, आप देखिएगा कि यहाँ नीचे उसके प्रीव्यू में डिस्क्रिप्शन आना शुरू हो गया। ओके, सो दिस इज व्हाट इट विल अपीयर। सो वंस योर साइट गेट्स इंडेक्स्ड इन गूगल, आपका ऊपर जो ब्लू वाला आ रहा है वो उस साइट से आएगा, उसके बाद फॉलोड बाय दैट 2 लाइनर जो आपका डिस्क्रिप्शन है। पेज यूआरएल आप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव चूजन द सेम पेज फ्रॉम द गूगल एडमिन। उसी तरह से आपको सोशल शेयर के भी यहाँ पे लिंक्स, तो विक्स के साथ एडवांटेज क्या है कि आपको सोशल शेयर के भी लिंक्स मिल जाते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब जैसे मैंने सबको हटा दिया था, पहले ऊपर हटाया, तो यहाँ पे टाइटल टैग आता है। तो इट गिव्स यू एन ऑप्शन कि अगर आप अपने पेज को विक्स पे अगर आप शेयर करेंगे तो किस तरह का ऑप्शन दिख के आएगा, या आप वहां पे क्या चाहते हैं, प्रीव्यू कैसा है, तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। उस पेज के लिए आप कस्टम टैग भी डाल सकते हैं, कस्टम टाइटल भी डाल सकते हैं, या फिर सेम टाइटल को आप रिपीट कर सकते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ पे मैं जो टिक वाला है उसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। ओके, तो आप देखेंगे राइट साइड में, जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वहां पे आपका जो प्रीव्यू आ रहा है वो अलग तरह का। यहाँ पे उसी तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपको यहाँ पे ये कस्टम करके मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सो दैट आप देख सकें कि जब सोशल आइकॉन यहाँ पे आ रहा है, सोशल पे जब शेयर कर रहे हैं, तो ये दूसरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अगर हम सेम डिस्क्रिप्शन डालें जो कि ऊपर हमने डाला हुआ है तो भी वो आ सकता है। ओके, तो मैं ये यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो पूरा एक्सटेंशन है इसको हटा के मैं सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेलिंग कर देता हूँ सो दैट सोशल मीडिया पे कंप्लीट। यहाँ पे एक ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो ओजी इमेज है, यहाँ पे ये एक ऑप्शन आ जाता है कि आप इमेज को, इमेज का जो भी इमेज आप प्रीव्यू में अपलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे जो इमेज आप चाहते हैं कि सोशल में अगर आप वेबसाइट को शेयर कर रहे हैं तो जो इमेज आप चाहते हैं कि वो वेबसाइट में प्रीव्यू के तौर पे आए, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। यानी अगर आप जब भी सोशल मीडिया पे आप कोई चीज अपलोड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इमेज, सॉरी, सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर इमेज वहां पे आए, तो आप उस इमेज का यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है, यानी या तो विक्स की वेबसाइट का है या कोई भी एक्सटर्नल यूआरएल है, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक यूआरएल हम अपना डालना चाह रहे हैं जो कि हमारा इस पे है, गूगल माई बिजनेस की साइट पे अगर अपलोडेड है, तो मैं उसको भी, यानी कोई भी यूआरएल, इमेज का यूआरएल जो कि आप डालना चाह रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। मैं एक हमारे डिजिटोस का ही एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको कि वहां पे अगर मेरे को कोई दूसरा लिंक अगर मुझे अपलोड करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गूगल माई बिजनेस के ऊपर एक लिंक है, एक इमेज है जिसको कि मैं चाहता हूं कि वही प्रीव्यू के फॉर्मेट में आए, तो मैं यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस लेके और उसके बाद मैं विक्स के यहाँ पे विक्स पे, तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये इमेज डाला तो अब ये प्रीव्यू के फॉर्मेट में ये यहाँ पे आ गया। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप जो है जेनरिक सोशल इमेजेस डाल सकते हैं, आप सर्विस से रिलेटेड डाल सकते हैं, या कोई एक स्टैंडर्ड इमेज है, इमेज का कोलार्ज है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये
ये सोशल शेयर के लिए हो गया, यानी फेसबुक और पिंटरेस्ट के ऊपर ये दोनों चीजें आएंगी। अगर ट्विटर के लिए आप कुछ अलग इमेज यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्विटर के लिए मैंने एक अलग इमेज यूज करने की कोशिश की है, वो यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसके अलावा कोई और इमेज यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज है जिसको कि अगर मैं डालना चाहता हूं कि ट्विटर के लिए मुझे ये वाला इमेज डालना है, तो मैं यहाँ पे जाके ट्विटर के पास जो इमेज का ओजी का जो ऑप्शन आ रहा है उसको मैं डालूंगा, तो यहाँ पे ट्विटर के अंदर ये इमेज आ गया। तो इस तरह से करके आप इस चीज को सेव कर लीजिएगा, तो आपके जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यूआरएल का जो ऑप्शन है वो चीज आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जो कंटेंट बताया है या कंटेंट जो मैं डाला हूं वही चीज हमारे सोशल शेयर के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो चीज हम एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल ये मेरा वेबसाइट का है और मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन कर ले रहा हूँ। एंड फेसबुक ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जो अभी विक्स की साइट है वो मैंने यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो आप लोग देखिए जो सोशल यानी फेसबुक और पिंटरेस्ट के ऊपर जो डालने के लिए जो प्रीव्यू आना था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ट्विटर पे अगर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ट्विटर पे पोस्ट करूंगा तो वहां पे दूसरा इमेज आएगा। ठीक है, तो इसी को मतलब यहाँ पे कुछ करने की चीज नहीं, यहाँ पे मैं और कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये है कि भाई जैसे ही मैंने ये इमेज डाला प्रीव्यू, जो आपने जो इमेज आप चाहते हैं कि ऑन प्रीव्यू आएगा वो आप कस्टमाइज कर दिए, वो आ गया। उसी से रिलेटेड जो आपने टाइटल डाला था, तो सोशल आइकॉन यानी फेसबुक के लिए मैंने टिक वाला टाइटल डाला था, वो यहाँ पे आ गया। अगर इसी तरह से अगर हम देखना चाहते हैं कि ट्विटर में क्या आएगा, तो हम ट्विटर में भी देख सकते हैं, क्योंकि अलग ट्विटर के लिए हमने अलग यूआरएल और डिस्क्रिप्शन और डिटेलिंग हम लोगों ने अलग डाला था। सॉरी, आई थिंक आई लॉग्ड आउट। तो आप जब ट्विटर पे जाके देखेंगे तो ट्विटर पे आप उस तरह के ऑप्शंस को आपके सामने आ जाएगा। एक मिनट में ट्विटर पे लॉगिन कर लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। सिर्फ एग्जाम्पल ये हमारा ट्विटर का पेज है। ओके, और यहाँ पे जो भी हमारे वेबसाइट का लिंक है उसको मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो प्रीव्यू आएगा वो
दूसरा इमेज यहाँ पे प्रीव्यू आएगा और फेसबुक पे दूसरा इमेज प्रीव्यू आएगा. It is still creating preview, so it may take couple of minutes time. तो इस तरह से आप अपने पेजेस के अपने सबसे पहली चीज ये है कि आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आपको निकालना है और उसके बाद आपको इस तरह से जो जैसा कि मैंने एक्सेल शीट आप लोगों को बताया है उसी तरह से आप लोग अपने एक्सेल शीट को क्रिएट करके और उसके बाद हर पेज के लिए आप लोग अपने टाइटल डिस्क्रिप्शंस इसको क्रिएट करके और जैसे मैंने एसईओ कंपोनेंट के अंदर जाके आप लोगों को विक्स के लिए बताया उस चीज को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे और इनकॉर्पोरेट करने के बाद उसको इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं कि सोशल में फेसबुक और इंस्टा पे आपको फेसबुक और पिंटरेस्ट पे एक अलग तरह का आप डाल सकते हैं. अगर आप कुछ भी नहीं डालेंगे तो डिफॉल्ट इमेज वो ले लेगा. ठीक है, तो आपकी वेबसाइट से वो पिक कर लेगा या चूंकि विक्स की फ्री वेबसाइट है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विक्स का ही इमेज वो पिक करे, डिफॉल्ट इमेज पिक करे. सो इट इज एडवाइज्ड कि आप वहां पे कस्टमाइज कर लें सो दैट आप कस्टम इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं. राइट, हर पेज के लिए आप अलग अलग इमेजेस चेंज कर सकते हैं ऑन फॉर सोशल और हर पेज के लिए आप अलग अलग टाइटल डिस्क्रिप्शन भी अपलोड कर सकते हैं. आप सेम रखेंगे तो भी मतलब वो ले तो लेगा, but thing is like that is not optimized since we are going through digital marketing class. So इससे ये बेहतर है कि हम एक एक पेज के लिए इंडिविजुअल कस्टमाइज करें और कस्टमाइज करके सबसे पहली चीज ये है कि इस तरह से हम अपने वेबसाइट के सारे मेटा टैग्स को हम क्रिएट कर लें. मोस्ट ऑफ यू हैव 4 और 5 पेज वेबसाइट. मैंने एक आप लोगों को कहा भी तो उसके बाद जैसे इंडिविजुअल पेजेस भी बनाए फिर सर्विसेज के भी सब पेजेस आप लोगों ने बनाए हैं. तो जितने भी पेजेस आप लोगों ने बनाए हैं उसको सबसे पहले लिस्ट डाउन कर लीजिए और उस पेज से रिलेटेड कौन सा कीवर्ड आपके लिए अप्रोप्रिएट है. तो सबसे पहले हमें कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस करना है. उस ये वाला जो एक्सेल शीट है ये एक्सेल शीट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा ग्रुप में. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो ओवरऑल जो आप लोगों को करना है इन स्टार्ट ऑफ दिस एसईओ प्रोसेस जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज ये है कि मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं थोड़े से चीजें स्टेप्स लिख देता हूँ सो दैट आप उन चीजों को करें और उसके बाद हम लोग फिर उस चीज को रिव्यू करेंगे. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों की एवरेजली 5 पेज की वेबसाइट है. ठीक है, मोर और लेस आप लोगों के 5 पेज की वेबसाइट आप लोगों ने बनाया है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इट्स अ सिंगल पेज वेबसाइट दैट यू गाइस हैव डन. हेलो, you guys have created multiple page website or you guys have single page website? I remember that you guys have multiple page website if I'm not wrong. Yes, sir, multiple page website. Multiple pages. ठीक है, तो हर पेज के लिए आप जैसे गूगल का जो कीवर्ड सिलेक्शन प्रोसेस जैसे मैंने बताया था तो उसी तरह से आप जाके अपने लिए हर पेज के लिए या फॉर एग्जांपल 5 पेज की वेबसाइट है तो आप एक 5 to 10 कीवर्ड्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, प्राइमरी कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लीजिए. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप्स. Select one primary keyword for each page. ठीक है, बट आप ये समझिए कि जो होम पेज होगा वो जेनरिक वर्ड ज्यादा होंगे. जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया कि डिजिटोज इज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो उसके लिए जो प्राइमरी कीवर्ड हमारा हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी हो सकते हैं. बट मोर और लेस मैं एजेंसी इसलिए कह रहा हूं, वजह क्या है कि वो होम पेज है. ठीक है, अब सर्विसेज का पेज जो हमारा होगा जहां की मल्टीपल सर्विसेज लिस्टेड हो सकते हैं उस पेज का कीवर्ड हमारा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो सकता है. और फिर जब उसके अंदर के पेजेस पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, एसईओ है, या जैसे एक का है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, यूआई यूएक्स डेवलपमेंट है, तो उससे रिलेटेड आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं.
उसी तरह से आपके जो है अबाया से रिलेटेड हो सकता है, एक्सेसरीज से रिलेटेड हो सकता है, राइट। तो आप उस तरह से आप मल्टीपल पेजेस हैं, तो हर पेज के लिए आप एक कीवर्ड आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सफिक्स या प्रीफिक्स, उस कीवर्ड के साथ सफिक्स और प्रीफिक्स, और रीजनलाइज है, लोकलाइज्ड है तो इन सिटी नेम। तो ये स्पेसिफिक क्या रहता है, फॉर एग्जांपल जो क्रिएट वेरिएशन इन keywords with by adding top, best, affordable, और जो भी आप गूगल में जब आप सेलेक्ट करें, सर्च करेंगे तो थोड़ा से ऑप्शंस मिल जाएंगे, एंड रीजनल कीवर्ड्स। ओके, सो इसका क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, फॉर एग्जाम्पल, इसका ये मतलब हो गया। ओके, थर्ड क्या करना है, आपको एक्सेल शीट बनाना है। ठीक है, जो जैसे मैं आपको सैंपल दिखाया हूं उसी तरह से आपको एक एक्सेल शीट बनाना है। फोर्थ, उस एक्सेल शीट की यानी टाइटल, सॉरी, कॉलम क्या होंगे, कीवर्ड्स फॉलोड बाय यूआरएल फॉलोड बाय टाइटल डिस्क्रिप्शन। ओके, ये आप बना लेंगे। ये आप पूरी वेबसाइट, जो भी 5-6 पेज की वेबसाइट है, 4 पेज की वेबसाइट है या 10 पेज की वेबसाइट है, पूरा का पूरा ये कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, विक्स साइट पे मार्केटिंग के अंदर, अंडर मार्केटिंग सेलेक्ट एसईओ ऑप्शन, और फिर वहां पे हमको एडिट बेसिक एसईओ का जो ऑप्शन आता है उस पे जाके, जो बाकी जो स्टेप्स बताए हैं उस पे जाके आप क्या करेंगे, एंड अपडेट ऑल टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। चूंकि मेरी वेबसाइट पे सिर्फ एक पेज की वेबसाइट थी तो मैंने आपको सिर्फ एक पेज का बताया। आपकी वेबसाइट मल्टीपल पेज की होगी तो विक्स में जब आप जाते हैं तो लेफ्ट साइड में टॉप में आपको ड्रॉप डाउन आ जाता है कि कौन कौन से पेजेस हैं। तो जैसे जैसे आप पेज को सेलेक्ट करते जाएंगे उसके लिए वो ऑप्शन आता चला जाएगा, और आप वहां पे ये सारी चीजों को चेंज करके एसईओ ऑप्शंस को, सारे जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसी तरह से आपको सोशल आइकॉन, सोशल के लिए अगर आप इमेज कस्टमाइज कर रहे हैं तो वो डाल दीजिए। बेहतर है कि आप सारी चीजों को वो डाल के उसको कंप्लीट करके उसके बाद उसको सबमिट कर दें। सो दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, ओके फाइन, एवरीथिंग इज डन नाउ। अभी ये सारी चीजों को करने के बाद जब आप पेजेस को आप अपडेट कर देंगे और ये सारी चीजें आपकी अपडेट हो जाएंगी तो आपको दिखेगा कैसा पेज, यानी आपको रिव्यू करने के लिए कि वो प्रॉपरली अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। उसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि मैं अपनी विक्स की वेबसाइट पे जाऊंगा, ये जैसे हम, मेरी विक्स की वेबसाइट है, तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा और मुझे मेरे पेजेस अपडेट हो गए हैं तो आप यहाँ पे जैसे ही आप माउस लेके जाएंगे, आप ऑन माउस ओवर पे आपको जो आप टाइटल टैग अपडेट कर रहे हैं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, जैसे दिख रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद। दूसरा दूसरा तरीका क्या है कि ये सही तरीके से अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे व्यू सोर्स में जाके, जो जो आपका ऑप्शन रहता है इस पेज के व्यू सोर्स में जाके, आप जब सर्च करेंगे, टाइटल टैग सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन सर्च करेंगे तो वहां पे आपको यही एग्जैक्ट चीज आपको दिख के आ जाएगी। ओके, कि आपने जो भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन अपडेट किया है, राइट। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो अपडेट किए हैं वो एग्जैक्टली वो विजिबल है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, तो
ये आपके लिए बेसिक एग्जाम्पल है कि कैसे कर सकते हैं। जब एक बार ये चीज हो जाएगा, जो मार्केटिंग, जैसे मैंने ये कहा कि मार्केटिंग में जाके, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाके, मार्केटिंग एंड एसईओ वाले कंपोनेंट में जाके आप इस चीज को अपडेट कर देंगे, तो ये अपडेट होने के बाद आप बाकी चीजों को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आपको वो पेजेस नजर आ जाएंगे। तो आपके जो भी पेजेस हैं आप उसको एडिट करके उसी तरह से आप सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपका ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो स्टेप है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर हम लोग साइट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को या फिर दीगर प्रोसेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर एक एक करके स्टेप्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर एक, चूंकि आप लोगों में से कुछ लोग टेक्निकल भी हैं, तो कोशिश करना हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि वहां पे एक ऑप्शन और आ जाता है। जब आप मार्केटिंग एंड एसईओ में जाते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन और आ जाता है जो कि आप लोगों के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, बट वी विल बी डूइंग दैट एज वेल, कि जब आप एसईओ टूल में जाते हैं तो सबसे पहले एसईओ पैटर्न है जो कि हम लोगों ने कर लिया है। उसी तरह से साइट वेरिफिकेशन है। साइट वेरिफिकेशन क्या है कि आप अपने साइट के एसेट को गूगल जो है, गूगल के अंदर, गूगल से आपको एक कोड मिल जाता है। जब वो कोड को आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपका साइट वेरीफाई हो जाता है और गूगल आपके पेज को इंडेक्स करना शुरू कर देता है। तो हम उस प्रोसेस को, क्रिएशन ऑफ गूगल साइट वेरिफिकेशन कोड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, बट स्टिल विल बी प्रैक्टिसिंग दैट। और उसके बाद हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद साइट मैप को फेच कराना, यहाँ पे आप जब देखिएगा तो यहाँ पे एक के बाद एक स्टेप्स हैं, ठीक है। गेट फाउंड ऑन गूगल, उसके लिए एसईओ पैटर्न हो गया। उसके बाद साइट मैप डॉट एक्सएमएल है, तो साइट मैप डॉट एक्सएमएल को हमको अपलोड करना है। फिर रोबोट्स डॉट टीएक्सटी है। तो इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं, ये हम फंडामेंटल्स ऑफ एसईओ के अंदर हम लोग इसको रिव्यू करेंगे और एक एक करके इन चीजों को इंप्लीमेंट करते चले जाएंगे और इसको हम लाइव करते चले जाएंगे। सो आई वाज एट व्हाइट बोर्ड। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर लेना है। एंड दिस इज व्हाट द एक्सरसाइज फॉर टुमारो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। Is there any question? Let me know. Otherwise, I'll just share. I'll share this particular thing to you guys. समझ में आया आज का जो थोड़ा बहुत जो भी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है? मोस्ट लाइकली आप लोगों को clear? Yes, sir. ठीक है, तो मैं ये Yes, it was clear. just posted it in my I just posted that screenshot on Sir, WhatsApp. that the drop down which is set like for multiple pages when in SEO tools Hmm. under that patterns, how will that come? I'm just trying to figure this out. I can't understand. Shall I share my screen? Yeah, please. Host disabled participant screen sharing. One. Yeah, please. Sir, this is the patterns there, right? Right. So from here, this is the description. These are the names which you showed, right? Yeah, you can edit that. You have to remove that site name and page name, and there you have to put title. So you mean just one by one? Similarly, I just name Yes, it down. Yes. So Okay. so for this, so this is basically for your homepage. You can see URL slug, the page URL, what it is appearing. Come down on the same page. Yes, here. उससे और नीचे. Yes. Right. So you are able to see. So this is the page for which you are actually doing the you are editing the this title. Okay, so below it one by one, I keep on adding the URLs. Okay. So no, actually the drop down which I was thinking was like somewhere else I get an option of selecting. आप ये सल्विया के नीचे जाएं, विक्स जो है ऊपर कहाँ पे? लेफ्ट साइड में Yeah.
और ऊपर और ऊपर और ऊपर, हाँ वहां पे क्लिक करें आप, click over there. So जी. here you have Salvia hijab and accessories. So you have created 2 websites, right? Yes, this first one was trial one. I was Right, testing out. right. And then you have, so what will happen? So Salvia, you have other pages as well, right? तो जब Yes, आप in जब this आप one. हाँ जब आप उसके इंटरनल पेज पे जाएंगे तो इंटरनल पेज के कंटेंट आप कैसे चेंज करते हो? जी, आई अंडरस्टैंड, आप जो यूआरएल बोल रहे हैं, राइट? राइट लाइक हियर, यहाँ पे अगर मैं दूसरा ये ऑप्शन दी तो यहाँ पे सेल आ गया ऊपर, जी, राइट? एग्जैक्टली राइट, वही बोल रहे हैं. एग्जैक्टली। तो जब आप Oops. उस ऑप्शन में जाएंगे, आप उस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये एसईओ कंपोनेंट वाला ऑप्शन आ जाता है और फिर उसके बाद हर पेज के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। जी जी जी, ऐसे ही सिमिलरली सारी यूआरएल्स में ऐड करते जाओ. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गॉट इट सर. और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, कोई और क्लैरिफिकेशन हो। All right, then we'll make a pause for today, and then थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कर लीजिए, और कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ ऐसा होता है, सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग दो, बट फिर भी कुछ ऐसा है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। सो फॉर नाउ, एज आई सेड, लाइक जो 5 पॉइंटर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी वेबसाइट जो है एसईओ रेडी हो जाती है। उसके अंदर थोड़े से और कंपोनेंट्स होंगे, जैसे साइट वेरिफिकेशन है, रोबोट्स एंड साइट मैप है, तो वो सारी चीज़ें एक एक करके सबसे पहले हम उसके इंपॉर्टेंस को रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे, और फिर उसके बाद हम ये ऑन पेज का सेक्शन हमारा कंप्लीट होगा एक एक करके। तो इस वीक में हम ऑन पेज और ऑफ पेज 2 चीज़ें होती हैं एसईओ के अंदर। तो कीवर्ड सिलेक्शन का एक प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसके बाद ऑन पेज पे अभी हम हैं, जिसके अंदर टाइटल डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करने की बात कर रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली विल बी टेकिंग अप वन बाय वन। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो सी यू टुमारो देन इंशाल्लाह। टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir.